कम देगा। ओके, क्लियर है ये? ओके, सो फ्री अटेंडेंस फॉर टुडे। अच्छा, आप लोग एक एप्लीकेशन दोगे, ठीक है? आप लोग जो बैकअप क्लास के लिए यहाँ हो, यू विल गिव एप्लीकेशन। स्वप्नेश जाना, Yes, ma'am. आरिफ आलम, Yes, ma'am. अनुपम सिंह गुप्ता, Present, ma'am. अनुपम सिंह गुप्ता प्रेजेंट है, लिपिका दास, देवेंद्र कुमार मंडल, Present, ma'am. दास, Present, ma'am. ऋषभ मंडल, ऋषभ मंडल इज नॉट प्रेजेंट, शोभन बैनर्जी, Yes, ma'am. कौस्तभ मैथिली, निशांत, अविनाश एंड शुभो। Present, ma'am. Present, ma'am. आपका हो गया? क्या है ये नट? 12069. अमित रंजन 120। 69. और किसी का जिसका कन्वर्ट हुआ है इसमें? एनीवन? जैसे ही होगा मुझे बताना। वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोग SMPS पढ़े, क्विकली रिकॉल करेंगे 5 मिनट में। क्या पढ़े SMPS में? व्हाट इज SMPS? Which was power supply, it converts As per the requirement, it provide power supply to all the components in the computer as per their requirement, right? And what is the form factor? What are the motherboard power connector? 80, And BTS, right? You know the pins. How many pins are there? 12 pins। प्रभात, आप नहीं बोल रहे हो क्यों? ले लो, लिखो किसी से और पढ़ो उसको। It's 80. What is the full form of 80? Advanced technology. 80X. What is the full form of advanced technology extended? कितने pin? 20. And BTX, how many pins? 24. 24 pins. Balanced technology extended. Okay. Now the second thing हम लोग क्या देखेंगे? और क्या जाने थे इसमें? कितनी मॉलिक्स में कितने पिन होते हैं? 4 pins, right? And PCIe पावर कनेक्टर में कितने पिंस होते हैं? 6 pins, ma'am. 6. Right? 16 PCIe pins. का फुल फॉर्म? Peripherals, components, हाँ बोलो बोलो। interconnected. इंटरकनेक्ट, T for express। उससे होगा क्या? We can add over there graphics card, network card जो एडिशनल हम लोग ऐड कर सकते हैं, that we can add in PCIe slot। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मदरबोर्ड। Okay? So what is motherboard? We will start motherboard। हम लोग इससे LMS का ही पहले थोड़ा सा देखेंगे and after that I'll see क्या कंटेंट। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है ये सब जो हम लोग जो भी पढ़े, जो भी डिस्कस किए? Yes. Am I audible to everyone in the online? Yes, ma'am. ऑडिबल हूं मैं सभी को? Yes, ma'am. ऑल राइट देन। ओके,
तो मदरबोर्ड है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग मदरबोर्ड ही क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? जो लिखा हुआ है फिलहाल उसको मत देखो, राइट? आई विल टेल यू. See, in your family, who do you go and tell everything? Who takes care of all the things at first? Your mother. It's मतलब ये एकदम conventional fact है सभी के लिए. So every member, each and every member of a family is connected to the mother, right? She is the one who communicates. जब आप परेशान होते हो, टेंशन में आते हो, या फिर कोई भी काम ऐसा होता है जो अगर डायरेक्टली पापा को बोलोगे तो 2-4 थप्पड़ मिलेगा, काम तो नहीं होगा, तो वो काम किसको जाके बोलते हो? मम्मी को बोलते हो, राइट? She communicates you from there, means she is the one to which everyone is connected. Just like that, in the motherboard, over here, all the components are directly or indirectly connected. It is also called as PCB. PCB का मतलब क्या होता है? Printed circuit board. Why it is called PCB? हम लोग लेके आएंगे मदरबोर्ड, और ये सब भी मैं लिख पाऊंगी. Why? Because मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स बने होते हैं. वहां पे स्लॉट्स होता है जहां पे तुम कनेक्ट कर सकते हो कुछ चीजों को. You will be able to connect certain everything. हर चीज का स्लॉट है वहां पे. रैम, CPU, all things can be connected over there. But how the current will flow, how the communication will happen? Forward bus and backward bus have been the copper wires. Copper wire strands we can see in the PCB board. Like we have, I have also worked in with PCB boards there. The copper wire connectors there in the motherboard. By that, all the devices are interconnected, right? I cannot recall the proper naming. Well, what happens actually, from motherboard, on the back side, मैं अभी लेकर आऊंगी मदरबोर्ड, हम लोग उसको थ्योरी पढ़ने के बाद देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है, कैसा होता है. तो on the back side, all the circuits are printed, जिससे होकर करंट फ्लो होता है, and the communication actually happens. Okay, that's why it is known as PCB. It's also very important question at the point of Viva. Viva में पूछा जा सकता है कि हम लोग मदरबोर्ड को PCB क्यों कहते हैं? Why we call it a PCB? Okay. तो हम लोग इसमें यहाँ देखते हैं, it is most complicated and important component of computer which is first to consider when building a computer. It acts as the main platform for communication between all other components of PC. मतलब ये मेन प्लेटफॉर्म जो अभी हम लोग ये बताए कि ये एक मेन प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है सबके बीच में. लिपिका, जब बता रही हूँ तो बस समझो, लिखने का मैं टाइम दूंगी, राइट? मैं लिखने के लिए दूंगी तो आदत हो गया नहीं होता है मेरे. Okay, why I'm saying this? Because if you will, there is no rush. First समझ लो, अगर तुम्हें समझ में आ जा रहा है, it's okay, हाँ? आप लिख सकते हो. But for everyone it's recommended not, don't try it at first. समझ लो, फिर लिखने का टाइम तो मैं देती ही. So जो हमने अभी डिस्कस किया, that all the components are directly or indirectly connected with it. That's why it is the main platform or main component of the computer. सबसे पहले कंप्यूटर बनाते समय मदरबोर्ड के ही फॉर्म फैक्टर को, मदरबोर्ड को ही कंसीडर किया जाता है. That how it's gonna be. Okay. Now what are the types? आप लोगों ने देखा है मदरबोर्ड? देखा है? Just wait. ये 2 पॉइंट नोट करो. फर्स्ट मैं लेकर आ रही हूँ मदरबोर्ड.
तो फिलहाल रखते हैं, I'll give you when the time will be right. Okay. So this is exactly how it looks. ऐसा होता है. Now एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना, that it's not necessarily it will be सारे मदरबोर्ड पे सारे कंपोनेंट इसके जैसे या फिर आपके हाथ में जो स्पेसिफिक होगा वैसा ही दिखेगा. It's not required or necessary. जो लैपटॉप के मदरबोर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे. क्यों डिफरेंट होंगे? एनी आइडिया? स्पेस तो कम ही है. क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है. स्पेस कम होता है तो तुम्हें ओवर देयर बहुत ही कम जगह में हर चीज होता है. सो इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि उतने ही इसमें लैपटॉप का भी साइज है 15 इंच 14 इंच उससे ज्यादा, तो जो भी है उसमें उतने में ही सभी आ जाए. दैट इज टेकन केयर ऑफ, उसका ध्यान रखा जाता है. So types of motherboard form factor, again मैंने बताया था कि form factor क्या होता है? The shape and size of any component is the form factor, right? So that is ATX, micro ATX motherboard, mini ITX and EATX. Mostly आपको 3 form factors हमेशा ध्यान में रखने होंगे. The 3 which I have already told you. That is ATX and GTX. Okay? वही वाला EATX वही तो है. हाँ, extended advanced technology extended. Actually, it's not extended, it's enhanced होगा. Over here, it's a printing mistake. Always remember that is enhanced advanced technology extended. Now, AT motherboard. AT means the board consists of advanced technology power connector. The AT motherboards are used in mid 80s. मतलब ये आपको at previous time ये सबसे पहले आता था, अभी obsolete हो चुका है. There is no AT motherboards are available now. ATX अभी आपको दिखेंगे, ATX आपको दिखेंगे, BTX तो खैर लेटेस्ट है, वो दिखेगा ही दिखेगा. Okay. Now, ATX motherboard configuration specification developed in mid-90s and still available. ATX is the most common motherboard design which is used in smaller board including micro ATX, flex ATX, nano ITX and mini ITX. See, ये जो macro, nano और mini ये सब है, that is designed in mostly that is specifically for the laptops. Okay. Just wait for 1 minute. Am I clear to the online? Online में मैं audible हूँ अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. और समझ में आ रहा है सभी? क्या होता है मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी क्यों कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बस बोलोगे तो ये तो फुल फॉर्म हो गया. क्यों कहते हैं प्रिंटेड बोर्ड? अच्छा, प्रैक्टिकल वाले दिन एवरीवन ट्राई टू बी फिजिकली प्रेजेंट बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे. We will see SMPS testing this time, and if possible, we will see assembling and disassembling as well. Anupam, आप आ पाओगे? Ma'am, next class. On Friday, yes. Yeah, that one. Yeah, I will try that. Yes. Yes. So हम लोग ये टाइप तो जाने फॉर्म फैक्टर क्या होता है और उसके पावर कनेक्टर के बेसिस पे किस किस तरीके का हो सकता है कौन से टेक्नोलॉजी पे. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मदरबोर्ड, जैसे इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड. इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड मतलब क्या है? जितने भी बैक पैनल के कंपोनेंट हैं दैट विल बी कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड. मींस ये आपको कैबिनेट दिख रहा है, सिस्टम, पीछे काफी कुछ है,
USB केबल कनेक्टर, LAN कनेक्टर, VGA, HDMI सब कुछ बैक पैनल में है। तो अगर वो सब मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, that will be known as integrated motherboard. Okay, and if the back panel ports are not connected with motherboard, are not available in motherboard, that will be known as, वो क्या कहलाएगा? नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? स्वप्नेश, कहीं भी लगे कुछ कंफ्यूजन है तो आस्क। इससे मैम फिर से समझाइए 2 नंबर। What is the background? बैक पैनल पोर्ट्स, जस्ट वंस we will do the disassembling and assembling, आप लोगों को अच्छे से ये रहेगा। जैसे यहाँ पे ये जो सिस्टम है, on the back side, on the back panel there are many ports like USB cable, USB port, LAN port जिसमें कि आप नेटवर्क के लिए वो लगाओगे, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, हर चीज बैक पैनल में है। तो अगर वो मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड है, देन दैट विल बी, वो कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। अगर वो नहीं है कनेक्टेड, वो अलग से ऐड करना हो रहा है तो इट्स नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। अमित, समझ में आ रहा है? ऑलराइट। सो नाउ यूज पे जो है, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड डिपेंड्स ऑन यूज। See, on different types of thing uses motherboard का क्लासिफिकेशन हो रहा है। एक हमने बैक पैनल कंपोनेंट के बेसिस पे नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्लासिफाई किया। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, यूज के बेसिस पे मदरबोर्ड का क्लासिफिकेशन है। यूज के बेसिस पे क्यों होगा? ऑब्वियसली व्हेन यू आर यूजिंग, जब आप कोई सर्वर क्रिएट करोगे या कोई सर्वर मदरबोर्ड बनाता है, तो सर्वर क्या होता है? जस्ट एक लाइन में मैं बता देती हूँ। सर्वर इज जो डिवाइस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे किसी भी तरह का सर्विसेज वो हो, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, दैट इज नोन एज सर्वर। और जो सर्विसेज लेता है, जो रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए, दैट इज क्लाइंट। ओके, लेटर ऑन हम लोग काफी तरह का सर्वर पढ़ेंगे, काफी कुछ उस बारे में जानेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग क्या जान रहे हैं, दैट सर्वर का काम क्या होगा? जो सर्विसेज देगा, ऑब्वियसली इट हैज टू बी ए स्ट्रॉन्ग वन, उसका कैपेबिलिटी ज्यादा होगा तभी तो वो सस्टेन कर पाएगा, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक चीज के बारे में आप सोचो कि हम लोग यहाँ पे अभी आप फेसबुक यूज कर रहे हो, करेक्ट? हर कोई यूज करता है। रात में 2 बजे आपका नींद खुला, 2 बजे आपका नींद खुला, अब नींद दोबारा आने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग? इंस्टा देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, रील देख लेते हैं। अब इमेजिन करो कि वहां भी एक सर्वर है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फेसबुक का भी एक सर्वर है। उन लोगों ने सोचा कि अच्छा पूरा दिन तो सब यूज करता है, हम रात को 2 बजे इसको मेंटेन करने के लिए करेंगे मेंटेनेंस। तो वो उस समय पे अगर क्लोज करके बंद, मतलब करेंगे काम, तो तुम एक्सेस करने जाओगे तो होगा नहीं एक्सेस, राइट? Which means, what I mean to say, there are certain services that cannot be stopped ever, जो कभी नहीं रोका जा सकता है। तुमको रात को 2 बजे मन किया कि तुम्हें कुछ मतलब बढ़िया सा खाना खाना है, अभी तुम गूगल खोले, गूगल सर्च किए, अब वो काम ही नहीं कर रहा है, तुम घी डाले थे उसमें, वो जल गया बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द रेसिपी। आपका ट्रस्ट गूगल पर से उठने लगेगा, राइट? So what I mean to say कि जो रिक्वायरमेंट है, अगर डेस्कटॉप सर्वर मदरबोर्ड है, तो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी रनिंग एट ऑल द टाइम, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। द डेस्कटॉप मदरबोर्ड कैन बी बिट एक्सपेंडेड, थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर आप लैपटॉप मदरबोर्ड देखोगे तो देखोगे वो इधर से कटा हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ से ये है, कुछ को एडजस्ट करके इस तरफ किया हुआ है। जितना कम स्पेस, जितने कॉम्पैक्ट जगह पे वो बन सकता है, उतने जगह पे वो उसको बनाने का कोशिश करेगा, बिकॉज वहां पे कॉम्पैक्ट जगह, कन्फाइंड प्लेस में हर चीज करना होता है। ये क्लियर है? मतलब समझ में आया? लिखना क्या है, आई विल टेल यू। ओके, डेस्कटॉप वाला और नॉर्मल सर्वर वाला जो है वो तो सेम ही होगा शायद। नहीं, सेम नहीं होगा। जैसे डेस्कटॉप मदरबोर्ड एक क्लाइंट भी हो सकता है, क्लाइंट सिस्टम में यूज होने के लिए। सर्वर मदरबोर्ड का टाइप्स होता है, वो टाइप में बताती हूँ क्या होता है, आई विल टेल यू।
डेस्कटॉप मदरबोर्ड, all this you can see, these are the desktop motherboard, यहाँ पे जो दिख रहा है, करेक्ट? और यहाँ पे जो ये वाला सिस्टम है इसमें भी तो डेस्कटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड ही होगा। ये जो दिख रहा है, दिख गया आपको भी, दिस इज डेस्कटॉप मदरबोर्ड। ओके, नाउ मैं लैपटॉप मदरबोर्ड आप लोगों को गूगल पे दिखा देती हूँ, हाउ विल इट लुक। Obviously, server motherboard will be more expensive. अगर लैपटॉप मदरबोर्ड देखते हैं तो इसमें दिस दैट काइंड ऑफ, मतलब वो जिस तरीके से एडजस्ट कर पाए जिस कंपोनेंट को, जहां पे लाइक दैट दे विल एडजस्ट। जैसे इसमें आपको हीट सिंक होता है, एक फैन लगा हुआ, राइट? हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में भी होगा कुछ कूलिंग के लिए, पैसिव काइंड ऑफ हीट सिंक। अब वो क्या होता है वो हम लोग जानेंगे लेटर ऑन, डोंट गेट कंफ्यूज। सो लेकिन अब लैपटॉप में तो इतना जगह ही नहीं होता है, इतना बड़ा हीट सिंक इंस्टॉल करने का जगह होता है क्या? असेंबल करने का नहीं होता है। सो व्हाटएवर कैन कम विद इन दिस, वो उस तरीके से कॉम्पैक्ट करके उसमें लगाया जाता है, राइट? डिफरेंस समझ में आया डेस्कटॉप मदरबोर्ड और लैपटॉप मदरबोर्ड का? नाउ वी विल मूव टू द सर्वर मदरबोर्ड। सर्वर मदरबोर्ड क्या होता है? टावर सर्वर, रैक सर्वर एंड ब्लेड सर्वर। Tower server means it will be, I'll show it to you. Like this. It will be, it's the tower server board, जहाँ पे in vertically it all will be placed, okay? And it has a way more capability. इसका capability जो है वो कहीं ज्यादा होगा डेस्कटॉप मदरबोर्ड से। And second, the rack server is will be placed like over there. Let me show you. All things, rack देखे हो, किसी भी चीज को जो रखते हो आप, over there it will be placed, every all that will be placed in the rack. That's why it is known as rack server, rack motherboard. And the third one जो blade server हम लोग बोल रहे हैं, blade server क्या होता है? हमेशा जब भी कोई मेजर ऑपरेशन होता है किसी भी आदमी का, तो कैसे करते हैं वो? हाँ, नहीं ब्लेड से तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? वो घूम फिर के आएगा और उसे बिठाएंगे और तभी एकदम बाईपास सर्जरी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दैट पर्सन नीड्स टू बी इन एनेस्थीसिया, राइट? ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड प्रोसीजर है। बट अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या का दिया कि जब आप अगर रात को 2 बजे एक्सेस करने जा रहे हो तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज वो आपका जो सर्वर है एनेस्थीसिया के अंदर है और अंडर मेंटेनेंस है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो देयर आर सर्टेन कंपनीज, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट, दे कैन नॉट अफोर्ड कीपिंग एवरीथिंग शट डाउन फॉर 1 आवर और 2 आवर जस्ट फॉर द मेंटेनेंस। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो कस्टमर बेस है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो वैसा नहीं है। तो द ब्लेड सर्वर इज द वन जिसमें शट डाउन करने का जरूरत ही नहीं है, ये हॉट स्वैपेबल है। सिस्टम ऑन है, ऑफ करने का जरूरत नहीं है, ऑन में ही वो चेंज कर सकते हैं। इफ सर्टेन पार्ट रिक्वायर्स टू बी चेंज्ड, वो ऑन ही रहेगा, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ रहेगा जो काम कर रहा होगा, बैकअप में कोई चीज सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी और वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को चेंज कर सकेंगे। दैट इज ब्लेड सर्वर। समझ में आया ये बात? सर्वर आप बोला ना, मैंने बताया कि यूज के बेसिस पे मदरबोर्ड्स के कितने कैटेगराइजेशन है? 3 है। क्या है वो 3? डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर। सर्वर का क्लासिफिकेशन 3 है। सर्वर
सर्वर जो है वो 3 तरीके का होता है, टावर सर्वर, रैक सर्वर एंड ब्लेड सर्वर. टावर सर्वर इट विल बी linearly placed. रैक सर्वर कभी अभी आप लोग सर्वर रूम नहीं देखे हो ना कभी का, रैक सर्वर होगा तो वहां देखोगे क्या, इट विल बी लाइक अ रैक एंड एवरीथिंग विल बी प्लेस्ड ऑन इट. लैब 3 में भी देखा. लैब 3 में वो दैट इज नॉट सर्वर. वैसे लैब दिखने 3 में में ऐसा दिखने में दिखने में रैक सर्वर हाँ, जैसा. ये जो लैब 4 का बात आप जो कर रहे हो, लैब 4. लैब 4 में जिसमें हम लोग इधर का जो है वो राउटर्स रखे हुए हैं, स्विचेस हैं वहां पे रखे हुए. ओके, दैट इज नॉट सर्वर. बट रैक सर्वर विल लुक लाइक दैट. It will be written one after another on the racks. So that is the rack server. And the blade server जो मैंने बताया कि there are companies that cannot afford, जो कि afford नहीं कर सकते हैं सिस्टम को शट डाउन करके उसे मेंटेन करना, तो वो क्या करते हैं, they use blade server जो कि हॉट स्वैपेबल होता है. हॉट स्वैपेबल का मतलब क्या है कि वो ऑन में ही, सिस्टम ऑन ही रहेगा और वो चेंज कर सकते हैं, वो मेंटेन किया जा सकता है. तो यूजर जो है वो 2 बजे भी अगर खाना का रेसिपी गूगल पे ढूंढ रहा है तो उसको तब भी मिलेगा, उधर काम चल भी रहा है. तो क्लियर यहाँ तक? ऑलराइट, तो अगर ये पार्ट आप लोगों का क्लियर है तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो. सोशल मीडिया इज मेंटेनिंग ऑन ब्लेड सर्वर. यस ऑफ कोर्स, कभी देखिए हो सोशल मीडिया नॉन एक्सेसिबल होते हुए, अपार्ट फ्रॉम रिसेंट टाइमिंग, एक महीना में या 2 महीना में 2 बार वो डाउन हो गया है. एंड आई गेस दैट इज परहैप्स बिकॉज ऑफ रैंसमवेयर. वो कुछ अटैक साइबर सिक्योरिटी का या इसका होगा तभी, अदरवाइज फॉर मेंटेनेंस तुम सालों साल नहीं देखोगे कि कह रहा है ये पेज अंडर मेंटेनेंस है. राइट, कभी भी तुम एक्सेस करो, 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात दिन, एनी टाइम यू विल ऑलवेज गेट दैट. किसी से मैम आप जो बोल रहे थे अभी, तो मदरबोर्ड के बारे में बोल रहे हैं ना, तो सर्वर तो दूसरा चीज हो गया. Yes, I was just saying कि basis of use सर्वर डिफरेंट चीज ही हुआ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ यूज जब मैंने लैपटॉप मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड एंड सर्वर मदरबोर्ड के बारे में बताया तो सर्वर का टाइप भी वहां पे तीनों, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, समझे? दैट्स व्हाई. एंड सर्वर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो वो 3 टाइप वहां पे लिखे हुए हैं बस. नॉट एज सच कि यहाँ पे आपको सर्वर के बारे में जानना, यू कैन स्किप दैट पार्ट. बट लैपटॉप सॉरी मदरबोर्ड का जो टाइप्स है वो नोट डाउन करो. नहीं, वो तो यस. सबका हुआ? नहीं. मदरबोर्ड हम लोग अच्छे से करेंगे, मतलब 2-3 क्लास लेकर, 3 या सेक्शन लेके ढंग से. रुक जाओ, जस्ट वेट.
हो गया? ओके, now there are two kinds of different classification as well. The one is chipset motherboard and original motherboard. Now chipset motherboard क्या है? चिपसेट मदरबोर्ड होगा जिसमें कि जो चिपसेट्स हैं लाइक नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये सब जो है दैट इज मेड ऑफ द सेम कंपनी जो मदरबोर्ड बनाया है. ओके, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर में आप दो नाम लिख सकते हो. राइट डाउन द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर गीगाबाइट एंड आसूस. एक लिखो गीगाबाइट एंड आसूस. पहले इंटेल बनाया करता था मदरबोर्ड, बट अब इंटेल मदरबोर्ड नहीं बनाता है. अब इंटेल बस क्या बनाता है? प्रोसेसर. ओके, सो दिस इज द मदरबोर्ड. किसका है ये? आसूस का है. गीगाहर्ट्ज एंड आसूस. गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज. नहीं, गीगाबाइट, सॉरी, गीगाबाइट, माय मिस्टेक. गीगाबाइट एंड आसूस, ये दोनों है. तो ये जो है दिस इज अ मदरबोर्ड मेड बाय हु? आसूस का बना हुआ है. डोंट गेट कंफ्यूज. मतलब व्हेन आई टेक वाइवा यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछो क्या है उनके दिमाग में से इंटेल ही होता है. इंटेल कब का बंद कर दिया मदरबोर्ड बनाना? वो नहीं बनाता. तो चिपसेट मदरबोर्ड का मतलब है जो चिपसेट्स हैं लाइक नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, वो और मदरबोर्ड सेम ही कंपनी का बनाया हुआ है. दैट इज अ चिपसेट. अगर वो दोनों डिफरेंट कंपनी का बनाया हुआ है दैट इज अ चिपसेट मदरबोर्ड. और अगर वो दोनों सेम कंपनी का बनाया हुआ है दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओरिजिनल मदरबोर्ड. Original motherboard, the chipset means the North Bridge and South Bridge and the motherboard are manufactured by the same company. Okay, it used to be the example of Intel. Okay, वो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वो क्या है? बताती हूँ. This is South Bridge. Okay, North Bridge जैसे अभी ये नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज भी ऑब्सोलीट हो गया है. रिसेंट मदरबोर्ड्स में देखोगे यू विल नॉट फाइंड इट. उसके जगह पे एक छोटा सा कुछ चिपसेट रहेगा जो यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है. दिस इज अ डैमेज्ड वन एक्चुअली. नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है? दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर. रैम और प्रोसेसर के बीच का कम्युनिकेशन नॉर्थ ब्रिज करता है. इसको दूसरे इसमें देखते हैं जिसमें अवेलेबल है. ये देखो, ये वाला मदरबोर्ड दिख रहा है. ये क्या है? ये हीट सिंक है. राइट, इसका काम क्या होता है? सीपीयू का प्रोसेसर के हीट को बाहर निकालना. ओके, ये जो नीचे इसके और प्रोसेसर के बीच में प्रोसेसर के ऊपर एक थर्मल पेस्ट अप्लाइड होता है. वो कूल करने के लिए होता है प्रोसेसर को. ओके, सबको विजिबल है ये. एंड दिस वन, ये जो चिपसेट आपको दिख रहा है दिस इज नॉर्थ ब्रिज. दिस इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट चिपसेट ऑन मदरबोर्ड. इसका काम क्या होता है? प्रोसेसर रैम एंड प्रोसेसर के बीच कम्युनिकेशन करवाना. इसके थ्रू ही प्रोसेसर रैम से डेटा फेच करेगा, उसके बाद उसको वो डिकोड करेगा. और जब हम लोग प्रोसेसर का फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे. ये इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा. एंड दिस इज व्हाट? साउथ ब्रिज. साउथ ब्रिज इज द सेकेंड लार्जेस्ट चिपसेट ऑन द मदरबोर्ड. देख सकते हो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है. इसका काम होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और नॉर्थ ब्रिज के बीच कम्युनिकेशन करवाना. जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा कनेक्टेड उससे और इसका कम्युनिकेशन ये करवाता है. ये पार्ट क्लियर है आप लोगों का? ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज CMOS बैटरी. इसका काम क्या होता है? डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम. अगर आप सिस्टम को ऑफ कर दो अभी
छुट्टी पे चले जाओ, 1 महीना बाद आओगे, ऑन करोगे तो सिस्टम का टाइम क्या शो करेगा? ऐसा है वैसे ही, अभी का शो करेगा, अगर ऐसा नहीं रहेगा ये रहेगा ही रहेगा। ओके, तो जब आप ऑन करोगे तो जिस डेट में ऑन करोगे उस डेट का टाइमिंग वो शो करेगा। वो कैसे हाँ मेंटेन, प्रेजेंट का शो करेगा। प्रेजेंट का शो करेगा। वो शो इसलिए करेगा बिकॉज उसके अंदर ये है जो कि स्टोर करता है डिफॉल्ट लोकेशन को एंड डेट एंड और टाइम। ये खराब हो जाने से वो डेट और टाइमिंग जो होता है वो बार बार चेंज करना पड़ता है और इस आपको वजह से। ओके, तो इसके बारे में सीमॉस बैटरी के बारे में 2-3 चीज नोट करो, राइट इट डाउन। नहीं क्या है सीमॉस, CMOS, फुल फॉर्म लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री, मेटल ऑक्साइड, METAL, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, yes. The serial number is फाइल है उसमें सबका यहाँ पे लैपटॉप है ना, एक फाइल इंटरनल का मार्क्स, प्रैक्टिकल का मार्क्स और एक्सटर्नल सबका डाला हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, उसको ना उस फाइल से ज्यादा कुछ निकालोगे तो लोग ना बैकअप कर रहे हैं, हाँ, तो उनका लेटर लगेगा। लेटर लगेगा। तो क्लासेस फॉर लेटर पे लिखे सर के लिए साइन करो। हाँ सर के लिए साइन कर लीजिए और मैम के लिए। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? सीरियल नंबर ऑफ CMOS, what is that? It's CR2032, सेम रहता है सबका सेम CR 2032, CR yes, CR मैम 20 2032, CR2032. Okay, now the voltage इसका कितना होता है? Required voltage is plus 3 volt. And How much, man? Can you repeat please? yes, the voltage of CMOS battery is plus 3 volt. 3 volt at many places you will find 3.3 volt. Okay, ये दोनों ही रहेगा. So anyone you will say it will be right. 3 volt. Yes. And चार्ज होने के लिए ना ये प्रोवाइड करता है मतलब इतना वोल्टेज, इसका वोल्टेज मतलब इसका जब चेक करोगे वोल्टेज आप, तो इसका वोल्टेज 3 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये 2.5 या उससे कम हो गया मींस इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट। 2.5 या उससे कम जब हुआ तो ये फिर डेट एंड टाइम को सेव नहीं करेगा, इट विल नॉट सेव द डेट एंड टाइम ओवर देयर ना, रिप्लेस करना होता है। द लाइफ स्पैन ऑफ CMOS बैटरी इज 5 years। देखो नॉर्मल लाइफ स्पैन, हाँ बोलो बोलो स्वप्निल। बेसिकली ये तो बैटरी है ना, चार्ज 5 साल तक रहता है अगर कंप्यूटर बंद भी करें। इमेज कुछ हाँ, ये एक एवरेज लाइफ स्पैन है इसका। मतलब कंप्यूटर अगर मैं आज चलाऊंगा उसके बाद 5 साल बाद चलाऊंगा, ठीक है, यूज तो नहीं हुआ, पावर भी नहीं कनेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं कनेक्ट करूंगा तो वैसे ही हाँ। प्रेजेंट डेट ही देखा। यस, देखो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये खराब नहीं हो सकता है, ये नहीं, सब वो तो 5 सही साल मतलब चलेगा है। नहीं है, या फिर ऐसा है यूजुअली माना जाता है कि आप एक आईफोन यू कैन यूज फॉर 5 years, बहुत बढ़िया चलेगा। बट ऐसा भी होता है कि कोई लिया पहले ही दिन उसका बारिश में भीग गया, खराब नहीं होता है बट हो सकता है हो गया, तो बोलेगा ये तो सही चीज नहीं है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अ नॉर्मल एवरेज लाइफ स्पैन फॉर दिस इज कंसिडर्ड टू बी 5 years। मैंने सोचा कि मतलब यूज होता है फिर से पावर कनेक्ट करेंगे तो फिर से चार्ज हो जाएगा ऐसा करके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है।
you need to replace it. अब जैसे देखो यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ है प्लस 3 वोल्ट, अगर इसको ध्यान से देखोगे when I will give it to you, you can see इसको निकाल भी सकते हैं ना, जो भी हो, इसको इस पे ध्यान से देखोगे तो ये CR2032 यहाँ पे मेंशन है। इसका काम क्या होता है? ऑलवेज रिमेम्बर फ्यू थिंग्स अबाउट इट। क्या क्या याद रखोगे? CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ इट? CR2032 वेरी गुड। एंड कितना वोल्टेज है? वोल्टेज 3 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज। जस्ट स्टे प्लस 3 वोल्ट। ओके, आंसर के साथ स्टिक रहो। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ इट? 5 ईयर। जिसका होगा तो इसको रिप्लेस करना होगा प्लस 2.5 वोल्ट। अगर 2.5 वोल्ट होता है या उससे कम होता है देन इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट। ओके, अगेन द सेकंड थिंग इज द मैन्युफैक्चरर मैक्सवेल। यस, वेल मैक्सवेल एंड मित्सुबिशी एंड हाँ Spell it out, please. yes it's Max. It's Maxell and Mitsubishi. मतलब मैम ये दोनों कंपनी बनाते हैं सब, वो जो एक जो बैटरी है। दूसरा कंपनी क्या बोली मैम? दूसरा It's Mitsubishi. मित्सुबिशी। Mitsubishi. ये बिल्कुल, पहले जो लिखवा रही हूँ वो लिख लो। हो गया ये? सो दो कंपनीज मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर का नाम बताओ। आशीष एंड गवाई। CMOS बैटरी दो मैन्युफैक्चरर, मैक्सवेल एंड दो अलग अलग कंपनी है ये दोनों। ओके, दोनों सेम नहीं है। राइट, सो याद रहेगा, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। हम लोग थे चिपसेट मदरबोर्ड। चिपसेट मदरबोर्ड क्या है? जहां पे चिपसेट और मदरबोर्ड डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वेंडर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। चिपसेट कोई और बनाया, मदरबोर्ड कोई और बनाया। सो दैट इज सी आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मदरबोर्ड अवेलेबल विथ मी राइट नाउ, है नहीं मेरे पास, तो वो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगी। बट जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि अगर आपके पास इफ यू हैव मतलब मदरबोर्ड कोई और बनाया है और नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज किसी और कंपनी का है, दैट इज अ चिपसेट मदरबोर्ड। एंड ओरिजिनल मदरबोर्ड क्या होगा? जैसे इंटेल पहले बनाया करता था, इंटेल यूज्ड टू बिल्ड मदरबोर्ड भी वो खुद बनाता था और नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज भी उसका ही होता था, दैट इज ओरिजिनल मदरबोर्ड। ओके, तो आप ये डिफरेंसेस भी लिख लो। जैसे गीगाबाइट का बोर्ड है बट उसमें इंटेल का चिपसेट है, तो वो क्या हो गया? चिपसेट मदरबोर्ड। बट इंटेल का ही बोर्ड है, इंटेल का ही चिपसेट है, जो हो गया ओरिजिनल मदरबोर्ड। नोट डाउन करो फ्रॉम हियर। ये भी टाइप है। हाँ, मतलब ये भी एक डिफरेंस हो सकता है मदरबोर्ड का। दिस इज ऑल्सो अ क्लासिफिकेशन।
नॉर्थ ब्रिज क्या करता है? प्रोसेसर और रैम को रैम एंड प्रोसेसर के बीच कम्युनिकेशन करता है। कम करते हैं। हाँ, हो जाने से बताना। And प्रोसेसर को ही चिपसेट बोलते हैं क्या? ना, प्रोसेसर भी एक तरह का चिपसेट है, बट वो चिपसेट किसको बोलते हैं आप आ रहे हैं। इसमें कौन से कंपनी का मदरबोर्ड है आपकी, कौन से कंपनी का चिपसेट? ये है आप, दिस इज द मदरबोर्ड ऑफ, ये HCL का मदरबोर्ड है। HCL also manufacturing. यस, इट्स ऑल्सो, ये जो आपका बैटरी है इसमें, दिस इज ऑफ मैक्सेल। किसी में भी देखोगे अलग अलग में अलग, किसी में पैनासोनिक का भी हो सकता है। मदरबोर्ड नहीं, पैनासोनिक का बैटरी होगा, मदरबोर्ड नहीं बनाता वो। यू विल सी इट। ये देखो, ये देखो, ये है आपको ओरिजिनल मदरबोर्ड। ये फॉक्सकॉन का बनाया हुआ मदरबोर्ड भी है, और ये जो आपका नॉर्थ ब्रिज दिख रहा है, ये भी फॉक्सकॉन का बनाया हुआ है, राइट। also done. सो दो नाम मैंने इसलिए लिखवाया बिकॉज एटलीस्ट दो आपको ध्यान में रखने चाहिए। देयर आर मेनी, यू कैन सर्च अपॉन इट। सो लाइक दिस, ये देखा आप लोगों को, दिस इज अ ओरिजिनल मदरबोर्ड। यहाँ पे आपका मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर एंड चिपसेट मैन्युफैक्चरर आर सेम। गॉट इट? नाउ लुक बिहाइंड, ये दिख रहा है आपको पीछे, देयर आर सर्किट्स दैट इज ड्रॉ, that's why this is called as PCB। मदरबोर्ड को PCB कहते हैं, PCB भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? It is printed circuit board. It's designed, it's written. The circuits are drawn in the back. पीछे ये ड्रॉ किया हुआ है कि क्या किससे कैसे कनेक्टेड है, how the current will flow, and that's how the communication happens। तुम कोई भी एक लो एक मेटल, उसके ऊपर तुम बस बना दो, ये सब थोड़ी ना कम्युनिकेट करने लगेगा। दिस नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू गेट देम कम्युनिकेटेड। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, उसके लिए मतलब इससे भी इसके ऊपर भी करंट फ्लो होता है, जो जैसे जैसे इसी लाइन के थ्रू होता है। जैसे जैसे लाइन है Yes. वो है ऊपर में कनेक्टेड और नीचे That's how it flows. It's designed over there। और यहाँ पे आपका ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। ओके, मतलब जब मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर होता है तब वो PCB आर रिक्वायर्ड, PCB is motherboard। Motherboard is a PCB। Okay, ये जो पूरा ये जो बोर्ड है ना, दिस इज व्हाट द मदरबोर्ड इज। उसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो मदरबोर्ड का हिस्सा है। समझ गए? ओके,
So what is this? प्रोसेसर प्रोसेसर सॉकेट। ये जो है ये कहलाता है, ये टूट गया है। दिस इज लीवर। ये लीवर होता है, इस तरीके से ये उठेगा। अब ये पूरा ही उठ जा रहा है। दिस इज लीवर। ये ऐसे उठाओगे, यहाँ मदरबोर्ड प्लेस करके इसको ऐसे लगा के इट गेट्स अटैच्ड। तीसरे वाले में देखते हैं, उसमें हो सकता है। ओके, लुक एट दिस। ये राइट, यहाँ पे प्रोसेसर प्लेस करेंगे एंड वी कैन जस्ट प्लेस इट। इसको लीवर से अटैच कर देते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज अगर ये अटैच नहीं रहेगा, प्रोसेसर वर्क्स लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज द वन जो सब प्रोसेस करता है। अगेन we will go back to the definition of computer. What is computer? takes input from users, stores in the memory, processed by the processor, and reverse is the result. Yes, right. लेकिन बस तुम ही क्यों बोले, बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहा? Right, सभी पता है सबको। नहीं बोलना भी होगा। What is computer? Computer is an electronic device that takes input from user, stores in the memory, process it and gives desired output to the user. Okay, ये पूरा ही बोलोगे। एटलीस्ट ये अमित कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तुमको परेशानी हो रहा है? पिछला क्लास में छूट गया है। जो छूट गया है वो भी आप नोट्स ले लो दूसरे से। हम लोग जिस दिन उसका प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो जो बताना था वो मैं फिर से एक बार बोल दूँ। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। So this is the one which process everything. मेमोरी में तो हम लोग स्टोर करेंगे, प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेस करता है सब सारी चीजों को। तो अगर ये अटैच नहीं होगा, इफ इट विल नॉट बी प्रॉपरली वेल केप्ट विथ लिवर, तो क्या होगा? हो सकता है आपने रखा, प्लेस किया इसमें, तो गिर गया खुल के। अब हमारा दिमाग अगर खुल के गिर जाएगा तो हम लोग किसी काम के हैं? तो सेम थिंग, दैट्स व्हाई इट्स लॉक्ड। ये इससे लॉक्ड रहता है। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग इसको खोल के देखेंगे। मदरबोर्ड का क्लास अभी चलेगा अच्छे से। ये बहुत वाइटल चीज है, आप लोगों को हार्डवेयर में ये अच्छे से होना चाहिए। एंड किसी भी तरह का कोई ये लगे ना तो मुझे मेंशन करो, बिकॉज हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज डिफरेंट हो, कभी समझने में इशू आए, तो जस्ट टेल मी। तो इसे पकड़ो। अभी आप लोगों के पास यू विल हैव 7 minutes राइट नाउ। मैं आप सबको एक एक मदरबोर्ड दे रही हूँ। जस्ट फिगर आउट व्हाट दैट आर। 5 कंपोनेंट आप इससे लिखो और उसका काम क्या है उसके बारे में आप जो जानते हो उसको लिखो। हर ग्रुप से मैं एक आदमी को पूछूंगी। आप चारों एक ग्रुप में हो और हो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ओके, देन अमित एंड प्रभात, आप तीनों इस ग्रुप में होगे। हाँ, अमित, आरिफ एंड प्रभात, आप तीनों, एंड आप तीनों एक ग्रुप में होगे। ओके, 5 कंपोनेंट्स आप लोगों को लिखना है और उसका फंक्शन बताना है। एवरीवन विल से, और जो ऑनलाइन में हो, यस मैम। तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग को मैं ब्रेकआउट रूम, 2 ब्रेकआउट रूम में डाल रही हूँ अभी। एंड यू विल बी सर्च अबाउट मदरबोर्ड। अभी मैं आपको फिजिकली तो दे नहीं पाऊंगी, तो सर्च अबाउट इट एंड 5 कंपोनेंट्स के आप वहां पे मुझे नाम बताओगे। जस्ट गिव मी 1 minute, मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर रही हूँ। जिस अविनाश, अजय, आ जाओ। देवेंद्र एंड शुभो, आप लोग
एक रूम में हो और आप तीनों एक रूम में हो। सबके पास स्क्रीन पे ऑप्शन क्या होगा,